اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر جو ہے وہ پچھلے تقریباً 15 ماہ سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ 120 نئی عدالتیں بنا کے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ان کیسز کے فیصلے کروا دیے جائیں۔ 120 عدالتیں بنانے کی بات جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، لیکن ان عدالتوں سے ہونے والے فیصلوں کی بات جو ہے وہ پنڈی کا شیطان کر رہا ہے۔ وہ پنڈی کا شیطان کہہ رہا ہے کہ 120 عدالتیں بنے گی اور 6 ماہ میں جو ہے وہ سارا صفایا ہو جائے گا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، یہ میری اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ پہلے 120 عدالتوں کی بجائے چند ہائی کورٹ کے ججز کو بٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ ان اسپیشل کورٹس میں جو کیس چل رہے ہیں وہ کیس چلنے کے قابل بھی ہیں۔ یعنی اتنا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی اسپیشل کورٹس میں ججز بیٹھے ہیں یہ سارے ضمیر کے قیدی ہیں۔ ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹس چیک ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی نگرانی ہوتی ہے، ان کے گھروں کی نگرانی ہوتی ہے، ان کے رشتہ داروں کی نگرانی ہوتی ہے، اور ان کے جو ہے وہ ہر وقت یہ جو ہے وہ سرویلنس میں رہتے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں سارے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ان کورٹس میں جو کیسز ہیں وہ تو چلنے کے قابل نہیں ہیں، اور یہ عدالتیں بھی ختم ہونی چاہیے، یہ اسپیشل کورٹس بھی ختم ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ 120 اور بنا دی جائیں، جن کے فیصلوں کی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ پنڈی کا شیطان دے رہا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں 120 عدالتیں بنیں گی اور اس طرح سے فیصلے کریں گی، ساری اپوزیشن کو جو ہے وہ نااہل کر دیں گی، ساری اپوزیشن کو جو ہے وہ سیاسی میدان سے جو ہے وہ فارغ کر دے گی۔ تو یہ جو ظلم اور زیادتی ہے، یہ جو ناانصافی ہے، یہ پچھلے 15 ماہ سے جل 15 کلو ہیروئن کا میرے اوپر ڈالا گیا ہے۔ میرے تمام پراپرٹی جو ہے، ایسٹ جو ہے وہ فریز ہے۔ الزام یہ ہے کہ وہ میں نے سارے جو ہے وہ ہیروئن کی سمگلنگ سے بنائے ہیں، اور دوسری طرف نیب جو ہے وہ یہ انکوائری کر رہا ہے کہ یہ میں نے اختیارات کا نجائز استعمال کر کے بنائے ہیں۔ یعنی ایک ہی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کی 2 ایجنسیاں ہیں، ایک طرف ANF ہے، ایک طرف نیب ہے، دونوں کا آپس میں جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہیروئن سمگل ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اختیارات کا غلط استعمال جو ہے وہ ہوا ہے۔ میرے تمام اکاؤنٹس وہ فریز ہیں۔ میرا جو سیلری اکاؤنٹ ہے جس میں بطور MNA اس میں تنخواہ آتی ہے، وہ اکاؤنٹ بھی فریز ہے۔ میری پوری فیملی کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک ہیں 1.5 سال سے۔ اس کے باوجود ہم اس ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس ظالم حکومت کے سامنے جو ہے وہ پورے قد سے کھڑے ہیں۔ تو کیا عمران نیازی تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں؟ ہم تمہارے ظلم کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور تمہیں منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ تم نے جو کل وہ اپنا گالی گلوچ برگیڈ اکٹھا کیا ہوا تھا، اور انہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی اپوزیشن کو ایکسپوز کرو۔ او بھئی اپوزیشن کا کیا ایکسپوز کرنا ہے تم نے؟ اپوزیشن کا کیا ایکسپوز کرنا ہے؟ اب تو تم خود ایکسپوز ہونے کے قابل ہو۔ جو 150 ارب روپے کی جس نے ڈکیٹی کی ہے چینی میں، وہ جا کے جو ہے وہ لندن بیٹھا ہے۔ کوئی ادویات میں جو ہے وہ اربوں روپے کما کے وہ ظفر مرزا وہ بھی بیرون ملک چلا گیا ہے۔ اور یہ کووڈ-19 کی جو یہ امداد چلی ہے اس میں ادویات کی پرچیز میں، یہ ماسک کی پرچیز میں، ہر چیز میں آپ ایک ایک چیز کو نکال لیں، 10 گنا قیمت کے اوپر جو ہے وہ چیزیں خریدی گئی ہیں۔ اربوں روپے کی دہاڑیاں لگی ہیں، اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، وہ اسے نظر نہیں آتی۔ اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کا جو ہے وہ اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ اپوزیشن کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسپوز کیا جائے، اور اتنا لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ فیصل آباد میں ایک فیصل ایڈوکیٹ نامی نے 8 کروڑ روپے کا فراڈ کیا،
अपने एक रिश्तेदार को अगवा करके उससे अगवा बराए तवान में 8 करोड़ रुपया वसूल किया, वो अब गिरफ्तार हुआ है। उसने जो लिस्ट बनाई है, उसने कहा है कि मेरे पास तो 8 करोड़ में से 8 रुपए भी नहीं है, ये 50 लाख मैंने फलां को दिया है, 1 करोड़ मैंने फलां को दिया है, 50 लाख मैंने फलां को दिया है। 5 पुलिस अफसरान की टीम के सामने उसने बयान दिया है। वो बयान करें लाइन सामने वो बयान। अब उस बयान को जो है वो छुपाया जा रहा है। मैं सीसीपीओ फैसलाबाद और आरपीओ फैसलाबाद को ये मुतनब्बे करता हूँ कि इस वीडियो को संभाल के रखना, इस बयान को संभाल के रखना, इसका यौम हिसाब आना है। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहूँगा कि आप इस एक केस का, उस फैसल नामी मुल्ज़म का जो है वो बयान आप बुला के देख लें, उसका 100 मोटो नोट्स ले लें। आपको फैसलाबाद में जो लूट मार हो रही है, गरीबों की झोंपड़ियों को जो है वो बिल्डोज किया जा रहा है, गरीब लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो करोड़ों रुपए की डकैतियां हो रही हैं। और जो डाकू और जो फ्रॉडिये जो है वो आवाम से फ्रॉड करते हैं, तबान लेते हैं, उनसे आगे जो है वो सरकारी लोग बैठे हैं तबान लेने के लिए। और जब वो मुल्ज़म पकड़े जाते हैं, बयान देते हैं, तो फिर उन बयानों को जो है वो कवर दिया जाता है, उनको छुपाया जाता है। तो ये जो लूट मार का बाजार गर्म है, ये इस तरह से नहीं रहेगा। ये इंशाअल्लाह ताला अब पीडीएम ने ये तहैया कर लिया है कि इस जुल्म के खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे, अवाम साथ देंगे। अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, हर आदमी जो है वो लुट रहा है, और जो मुल्ज़म है वो आबद जो है वो मोटरवे का मुल्ज़म, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, और उसके मुतल्लक बात करने पर मीडिया में पाबंदी लग गई है। सोशल मीडिया में जो है वो अब वो जोक हो रहा है, वो कहते हैं वो पीटीआई में उसने शमूलियत इख्तियार कर ली है, इसलिए अब मीडिया के ऊपर कहा कि इसका कोई नाम ना ले, इसके मुतल्लक जो है वो कोई बात ना करे। आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आज तो 3 सेकंड में हर चीज़ जो है वो हर जगह पे पहुंचती है। इस तरह की डकैतियाँ, इस तरह की लूट मार को छुपाना और अपने गाली गलोच ब्रिगेड को कहना कि लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, लोगों के खिलाफ जो है वो बातें करो, और आला मनसब पे बैठे लोगों को, मियां नवाज शरीफ को एक जाली मुकदमे में, एक झूठे मुकदमे में जो है वो सज़ा जो हुई है, और जो सज़ा देने वाला जज कह रहा है कि ये मैंने अपने ज़मीर के खिलाफ फैसला किया है, ये मुझसे जो है वो मुझे ब्लैकमेल करके सज़ा दिलाई गई है। वहाँ पे तो उन्हें जो है वो निज़ाम का जो है वो मजाक उड़ता नज़र आता है, लेकिन जब सरीना ईसा वहीं पे इस्लामाबाद में वहाँ पे एफबीआर के में धक्के खाती फिरती है, तो वो उनको नज़र नहीं आती कि उसका मजाक जो है वो कैसे उड़ रहा है। लोग उठाए जाते हैं और वाले हैं वो 5 दिन 6 दिन जो है वो धक्के खाते हैं, वो रोते हैं, वो सड़कों पे रुलते हैं, और उसके बाद वो बंदा आता है, वो कहता है मैं तो शुमाली इलाका आजाद की सैर करने के लिए गया था। ये निज़ाम का मजाक उड़ता जो है आला मनसब पे बैठे लोगों को जो है वो नज़र नहीं आता। मियां नवाज शरीफ जो है वो अगर अपने इलाज के लिए बैठा है, बाहर गया है, बाहर या उसे भेजा गया है, वो मजाक उड़ाता नज़र आता है। सरीना ईसा का मजाक उड़ता नज़र नहीं आता। शुमाली इलाका जात की सैर जो है उसका जो है वो मजाक उड़ता नज़र नहीं आता। मियां शहबाज शरीफ जिसने खिदमत की है सूबे की, मैं दावे से कहता हूं कि 1 रुपए की करप्शन जो है उसके खिलाफ जो है ये साबित करें। उसके ख़ानदान के कारोबार की ट्रांजैक्शंस को जो है वो इधर उधर घुमा के जो है उसके ऊपर जो है वो केस बनाया जाता है, और रेफरेंस दायर हो जाता है अदालत में, वो अदालत में हाजिर हो जाता है। इसके बावजूद सिर्फ जो है उसे जो है विक्टिमाइज करने के लिए जो है उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो तजादात हैं, ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। ये ज़्यादा देर जो है ये जुल्म जो है वो कायम नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया है कि हर
محب वतन पाकिस्तानी जो है वो उठ खड़ा हो और इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एहतजाज जो है, अपनी सदा जो है वो बुलंद करें। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम जो है वो कामयाब होंगे और ये जालिम हुक्मरान जो है वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त मौजूदा सियासी गोलाबारी है, दोनों तरफ से बयानात का सख्त सिलसिला जो है वो जारी है, आप ये नहीं समझते कि आपकी लड़ाई किसी और तरफ कन्वर्ट हो गई है और मौजूदा हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है? मौजूदा हुकूमत जो है ये ना कभी मजबूत थी, ये कठपुतली हुकूमत है, ना ये कभी मजबूत हो सकती है। अलबत्ता हुकूमत की ये कोशिश है, इमरान खान साहब ने अपने गाली गलोच ब्रिगेड को कहा है कि आप अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें। यानी जब ये लोग अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो लाजमी बात है कि फिर अदारों के मुतल्लिक़ जो है वो बात होगी। ये चाहते ये हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में दस्तों गिरेबां हों और ये बीच में जो है ये चूरी खाते रहें। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले जो है इनकी पकड़ होगी, ये मियाँ मिठू जो बैठा है, और उसके बाद जो है वो बात होगी। अदारों के ख़िलाफ़ कोई अपोजिशन का, ना कोई अपोजिशन का बयानिया है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी मुसल्लह अफवाज को, अपनी अफवाज के शुहदा को, अपनी अफवाज के जवानों को, अफसरों को जो वतन की हिफाजत के लिए सरबकफ हैं, उनको 3 मरतबा अपनी स्पीच में जब वो हाथ उठा के सलाम किया है, सलूट पेश किया है और उसकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगा दी है। वही बातें उसने 20 तारीख को की, कोई पाबंदी नहीं लगी, बल्कि इजाज़त दी वज़ीर आज़म ने। वही बातें उसने जो है वो 1 दिन पहले की, कोई पाबंदी नहीं लगी। लेकिन जिस दिन उसने अपने फौजी अफसरों और जवानों को सलूट पेश किया, उस दिन पाबंदी लग गई, ताकि जो है वो ये पैगाम जो है वो ना पहुँचे। हमारा ये पैगाम है, किसी अदारे के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई अदारा जो है वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। सब लोग मुहिब वतन है, सियासतदान मुहिब वतन है, अपोजिशन मुहिब वतन है। और ये जो अपोजिशन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो है वो बात की जा रही है कि जी इंडिया के साथ तल्लुकात हैं, इंडिया खुश हो रहा है। वो भाई जो तुम्हारे 23 अकाउंट है वो लाओ ना सामने, पता चल जाएगा इंडिया से पैसे कौन लेता रहा है, पता चल जाएगा इसराइल से पैसे कौन लेता रहा है। सारी बात जो है वो सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन में वो अकाउंट्स पड़े हैं, उनका ऑडिट करवाओ, क्यों नहीं करवाते वो? लेकिन मियाँ साहब ने ये कहा है कि जो इमरान खान न्याजी को लाए हैं हमारी जंग उनके साथ है, इमरान खान के साथ नहीं। आप मामला ये है कि जो लाए हैं ना, गलती हो गई है ना, गलती वापस नहीं। हमारी लड़ाई नहीं है किसी से। हम तो ये कहते हैं कि इस मुल्क में जो होता रहा है, कन्वेंशन लीग कैसे बनी, IJI कैसे बनी, जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, ज़ियाउल हक ने क्या किया, ये सारा हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन हम कहते हैं कि जो हो चुका सो हो चुका, अब आओ आगे चलें, बैठे डायलॉग करें। लेकिन बात ये है कि की मसाहलत की उस पॉलिसी पे आ गई है। मामला ये है कि मसालहत की पॉलिसी से ये मुराद नहीं है कि हम जो है वो वोट की इज्जत को जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। वोट को इज्जत दो, वोट के फैसले को तस्लीम करो, वोट को इज्जत दो, वोट के फैसले को तस्लीम करो। इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब जो हो चुका है पहले वो तो वापस नहीं आ सकता। हम कहते हैं कि आए, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को फैसला करने दें, इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन का मौका दें, इस मुल्क में फ्री और फेयर एहतसाब जो है वो होना चाहिए। इस मुल्क में जो है वो किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए। अब अगर इससे पहले दायर हुए हैं तो उनको ख़त्म होना चाहिए ना। अगर इससे पहले अगर किसी से भी कोई अगर गलत हुआ है तो उसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और हमारा यही मुतालबा है। इसके अलावा हमारा ये मुतालबा नहीं है कि हम जो है वो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो आज अगर इमरान खान जो है वो स्टेप डाउन करे, कठपुतली हुकूमत जो है वो ख़त्म करे, आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले, जो कामयाब होगा हम उसको जो है वो। अच्छा राना साहब, आप ये समझते हैं कि ऑपोजिशन से कहीं ना कहीं गलती हुई है?
जो आवाम के इशू हैं, महंगाई इतना बड़ा जो है, डबल कीमतें हो चुकी हैं, आप लोगों ने गलती की है, ना आपने एहतजाज किया ना जलसे किए, इसको आप तस्लीम करते हैं? ये प्रोपेगेंडा है गाली गलोच ब्रिगेड की तरफ से। अपोजिशन ने हमेशा महंगाई की बात की है, अपोजिशन ने हमेशा आवाम की बात की है, अपोजिशन ने हमेशा जो है वो जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी बात की है, अपोजिशन ने हमेशा ताजरों के मुतालबों को जो है वो इंडोर्स किया है। मामला ये है कि अब जब अपोजिशन ने हतमी तौर पे ये फ़ैसला किया है कि वो आवाम के लिए, इस मुल्क के मसाइल के लिए जो है वो खड़े हों और एहतजाज करें, उसमें जो 26 नकाती जो रेजोल्यूशन PDM ने जो है वो ऑप्ट किया है, उसको आप सारे को पढ़ के देख लें। उसमें आवाम के मसाइल के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। आवाम के मसाइल के ऊपर ही जो है वो हमने हर चीज़ की बुनियाद रखी है। और ये जो हम फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं, ये हम जो फेयर एहतसाब चाहते हैं, ये जो हम गलत मुकदमात के अंदराज की जो है वो नफ़ी चाहते हैं, तो ये किस लिए चाहते हैं? अगर ये हो जाए सारा, ये अगर इंसाफ कायम हो जाए, तो सबसे पहला कदम जो होगा वो आवाम की खुशहाली होगी। पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा। इस तरह की नाइंसाफ़ी से अब एक वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के एंटी नारकोटिक्स के जर्नैल को साथ बैठा के, फरदौस आशिक अवान को साथ बैठा के, शहरयार अफरीदी को साथ बैठा के उनकी ट्रेनिंग कर रहा है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो जाली केस है उसको आपने किस तरह से जाके डिफेंड करना है। आप मुझे बताएं कि वो मुल्क जो है, वो हुकूमत जो है वो फिर चल सकती है? वहाँ पे फिर इंसाफ का नाम जो है वो लिया जा सकता है? ये चीज़ें जो है, अगर ये चीज़ें ख़त्म होगी तो उसके बेनिफिशियरी जो है वो मुल्क के अवाम हो। अब आप मुझे ये बताएं, पंजाब हुकूमत की आपने बात की है, वो किसको नहीं पता कि 5 करोड़ रुपया तो लिया है इसके बुज़ार के जो है वो भाई ने, वो जो इसका कज़न जो है वो बाहर इसका फ्रंट मैन के तौर पे बैठा है, और गिरफ्तार कर लिया है वो DG एक्साइज को, क्या नाम है उसका, अशरफ गोंदल को। यानी अब मामला ये है कि ये कहाँ का इंसाफ है? ये नैब जो है ये क्या कर रही है? नैब जो है, नैब को बस यही काम रह गया है। मेरे वालिद ने 1963 में मकान बनाया था। अब नैब गई हुई थी 4 दिन पहले कि उस मकान की कंस्ट्रक्शन की वैल्यू निकालनी है कि मैंने अपनी पैदाइश से पहले या कोई 2-3 साल की उम्र में मैंने ये मकान किस तरह से बनाया है। यानी ये नैब कर रहा है। यानी ये नैब की जो है वो तफ्तीश है, ये नैब की इंक्वायरी है। 5 करोड़ रुपया लिया है वज़ीर आला के भाई ने और गिरफ्तार कर लिया DG एक्साइज को। सिर्फ वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा कहा कि ये क्या मजाक है, बात ख़त्म होगी। तो फिर इस तरह से अगर ये मामला चलेंगे तो फिर ये किसी इनकलाब की तरफ बात जाएगी। ये फिर अगर जो है वो इंसाफ नहीं होगा तो फिर ये नहीं हो सकता कि ये जुल्म जो है वो इसी तरह से कायम है। शेख रशीद साहब नून और शीन की बात करते हैं, फ़याज़ुल जौहन कहता है कि अब इनमें से नीम जो है वो निकल रही है, और इसके साथ साथ बात ये है कि ये पिंडी का शैतान जो है ये नून में से शीन और शीन में से नून निकालते इसको। मैंने इस आदमी को खुद देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ के पीछे 2008 में कुत्ते की तरह ये दुम हलाता फिरता था कि मुझे शामिल कर दो। और मरहूम जो है वो अपना नवाब वक्त के मजीद निज़ामी साहब, वो इसके जो है वो सिफारशी थे। फर्रख साहब उनके एक रिपोर्टर हैं और वो इस वक्त हयात हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो ज़िंदगी दे। वो इस बात के गवाह हैं, उनसे आप पूछें कि ये उस वक्त क्या कर रहा था। साहब बता दें कि मरियम साहिबा ने जो कहा था कि हमारा बयानिया, मेरा बयानिया और मियां नवाज शरीफ का बयानिया उठाने की हर किसी की बस की बात नहीं है, तो अब नून लीग ने उनका बयानिया उठाने की तैयारी कर ली है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर फर्द ने, हर वोटर ने, हर सपोर्टर ने जो है मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को तस्लीम किया है, उसे ऑप्ट किया है, उसको साथ लेके चलने का जो है वो अहद किया है। अब देखिए, बात ये है कि एक आदमी जो है, हर आदमी की एक लिमिट है। एक आदमी जो है वो एक हद तक जो है वो जा सकता है, एक आदमी जो है वो उससे आगे जा सकता है। हर किसी में जिसमें हिम्मत नारा लगाने की है,
جس میں ہمت جو ہے وہ خاموش سپورٹ کی ہے، جس میں ہمت جو ہے وہ آگے بڑھ کے جدوجہد کرنے کی ہے، جس میں جتنی ہمت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ لے. باقی دل سے جو ہے وہ سب متفق ہیں اور سب جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب کرے. بہت شکریہ.